ابھی آپ کو بتائیں کہ بڑھتی فضائی آلودگی ڈی جے خان، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں اسکولز بند کر دیے گئے۔ 12ویں جماعت تک تمام کالجز میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ 17 نومبر تک اسکولز کو بند کر دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ بڑھتی فضائی آلودگی کے پیش نظر ڈی جے خان، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں اسکولز بند کر دیے گئے۔ 12ویں جماعت تک تمام کالجز میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ 17 نومبر تک اسکولز کو بند کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے سائے آلودہ فضا نے سانس لینا محال بنا دیا۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 770 ریکارڈ۔ ملتان کا AQI 750 تک جا پہنچا۔ پشاور 293، فیصل آباد 252، اسلام آباد میں AQI 284 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ اور دھند سے راستے گم ہو چکے ہیں، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد تک بند۔ موٹر وے M4 پر بھی پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ یہاں خیبر پختونخوا پنجاب میں زہریلے دھوئیں کے سائے آلودہ فضا نے سانس لینا بھی محال کر دیا۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 770 ریکارڈ۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 750 تک جا پہنچا۔ پشاور 293، فیصل آباد 252، اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 284 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ اور دھند سے راستے بھی گم۔ موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 پر بھی پنڈی بٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ آپ کو صورتحال بتا رہے ہیں اسموگ کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے سائے آلودہ فضا نے سانس لینا بھی محال کر دیا۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 770 تک جا پہنچا۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نعمان خان بابر ملتان سے، سامیہ سعید لاہور سے، عامر جمیل پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ نعمان کی جانب سب سے پہلے چلتے ہیں۔ نعمان، آپ بتائیے گا ملتان کی کس مقام پر ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ جی بالکل، پہلے تو یہ بتا دوں ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع ہیں جو گزشتہ کئی روز سے اسموگ کے لپیٹ میں ہیں۔ صورتحال یہ کہ ملتان میں افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اسموگ کے حوالے سے، اسموگ کے حوالے سے، کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 834 تک پہنچ چکا ہے۔ موٹر وے جو ہے M3، M4، M5 جو ہے اس وقت بند ہے۔ اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ٹرینز کے اوقات جو ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ کے جو اقدامات ہیں صرف زبانی جمع خرچ دکھائی دے رہے ہیں، فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں، کیونکہ رات جو ہے تاجر تنظیموں نے مارکیٹس جو بند کرنا تھی 8 بجے، وہ بند کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے پارکس اگرچہ فائلوں میں ضرور بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے رش اسی طرح سے برقرار ہے۔ لوگ اسی طرح سے پارکوں کا رخ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ناک کان بیماریاں ہیں ان کے مریضوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم DC سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ کارروائیوں کا اب آغاز کیا گیا ہے، لیکن کچھ ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، یا جو کمپین کی جا رہی ہے وہ بھی صرف ایک ماسک کے ڈبے تک محدود رہ گئی ہے۔ فوٹو سیشن کیا جاتا ہے، ایک ماسک کا ڈبہ کھول کر ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد تمام خانہ پوری کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال ہے کہ میں قلعہ کونا قاسم باغ کے پاس موجود ہوں، جو اس وقت بھی پارک کھلا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح سے تفریح کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں بند ہونی چاہیے تھی، جو SOPs جاری کیے گئے ہیں، ان پر بھی عمل درآمد جو ہے دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ جو فصلوں کی باقیات ہیں، جیسے کہ دھان کی فصل ہے، اس کو بھی اسی طرح سے جو باقیات ہیں اس کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ضلعی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہے۔ جی کر لیتے ہیں لاہور کا، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سامیہ سعید۔ سامیہ بتائے گا، لاہور کا آج بھی پہلا نمبر ہی موجود ہے اور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، سب سے زیادہ AQI ریکارڈ کیا گیا ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کے کچھ اثرات سامنے آ رہے ہیں یا نہیں؟ دھند کے ڈیرے بھی برقرار ہے اور اسموگ نے پوری طرح جو ہے وہ شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ ایک دھندلا پن ہی محسوس ہو رہا ہے۔ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں تاحال اسموگ کی اوسط شرح جو ہے وہ 700 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی، تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ اطمینان بخش نہیں دکھائی دے رہی۔ DHA کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کو بھی کراس کر گیا ہے۔ اسی طرح سے عامر ٹاؤن کے علاقے کا
एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यह दादोशुमार जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर लाहौर की जो सूरत हाल है वो किस कदर तशवीशनाक हो चुकी है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए जो है वो चंद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल स्मोक पर जो है वो काबू नहीं पाया गया। और स्मोक पर जो काबू नहीं पाया गया इसके बाइस हम यही नताइज देख रहे हैं कि शहर लाहौर में बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं, जिसमें आई इन्फेक्शन, साथ ही साथ चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां शहर लाहौर में आम है। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस बात की जो है वो शहरियों को आगाही देने की ज़रूरत है कि मास्क और का जो इस्तेमाल है वो ख़ास तौर पर शहर लाहौर में लाजमी करें, ताकि जो है वो स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अलबत्ता हद निगाह कम होने के बाद सुबह सवेरे जो था वो मोटरवे M2 M3 को जो है वो बंद कर दिया गया था, मगर जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई है यहाँ पर जो है वो मोटरवे M2 को खोल दिया गया है और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जबकि मोटरवे यूजर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी धुंध के साथ साथ स्मोक के डेरे भी बरकरार रहेंगे। तमाम शहरी कोशिश करें कि सुबह के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें और फूड लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक यही बताया जा रहा है कि 14 नवंबर से वेस्टर्न हवाएं जो हैं वो मुल्क का रुख करेंगे, जिसके नतीजे में जो है वो रावलपिंडी डिवीजन में बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में भी अगर हल्के बादल आए 14-15 नवंबर को तो पूरी कोशिश की जाएगी कि मसनूई बारिश करवा कर जो स्मोक की जो शरह है, बढ़ती हुई शरह जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, उसको कम किया जा सके। ठीक है, मसनूई बारिश मुमकिन तौर पर करवाई जा सकती है। लाहौर में सारी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए आमिर जमील से बात कर लेते हैं, पेशावर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो कदरे बेहतर था गुज़श्ता दिनों, आज जो है 293 है। अभी बताइएगा कि इकदाम सख्त किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से तदारुक के लिए? देखिए, अगर हुकूमती इकदाम की बात की जाए तो उनकी तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें से ख़ास तौर पर उन्होंने ये बताया कि जो होटल्स हैं उनको हिदायत दी गई हैं कि वहाँ पर जो धुआं वगैरह निकलता है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी तरीके से गाड़ियों पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है कि उसका जो जहरीला धुआं है उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ बातें जो हैं वो बातों की हद तक ही नज़र आती हैं, अमली तौर पर कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की एयर क्वालिटी की बात करें तो वो कदरे बेहतर हुई है। और उसकी वजह हुकूमती इकदाम नहीं बल्कि पेशावर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो बारिशें हुई हैं उस वजह से जो एयर क्वालिटी कंट्रोल है वो किसी हद तक बेहतर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो एयर क्वालिटी कंट्रोल था वो 506 था, जबकि आज जो है वो 293 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये मजमूई तौर पर ये फिगर सामने आ रहे हैं। अगर हम पेशावर के शहरी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ यहाँ पर एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार है दला ज़ाक रोड, वहाँ पर 742 एयर क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरीके से जो शामी रोड का इलाका है वहाँ पर 500 से ज़ायद का जो है एयर क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर पेशावर का 293 है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह से ही मोटरवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज मोटरवे को बंद कर दिया गया। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा, रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं हरीम जदून। हरीम, बताएगा क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है? देखिए, इस्लामाबाद में जो है वो स्मोक बरकरार है। हमें ये लग रहा था कि कल जो गुज़िश्ता रोज़ का मौसम था, बारिशों का एक्सपेक्ट की जा रही थी, तो उसके बाद स्मोक में कुछ कमी वाक़या होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी इस्लामाबाद में 250 क्रॉस कर गया है AQI लेवल। इससे काफ़ी हद तक बीमारियां भी फैल रही हैं। हमारी कल जब माहिर माहौलियात से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो मेजर इस्लामाबाद में AQI ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह रावलपिंडी से आने वाली जो ट्रैफिक है, स्पेशली जो फैज़ाबाद के मुकाम पर जो बड़ी गाड़ियाँ, जो ट्रक्स और इस तरह की जो सब्जी मंडी के आसपास जो गाड़ियां होती हैं, उनकी वजह से जो धुएं वाली गाड़ियां वो इस्लामाबाद की हदूद में जब एंटर होती हैं तो इस्लामाबाद का AQI लेवल तब जो है वो हाई होता है। इसके हवाले से आज एक मीटिंग जो है वो भी बैठनी है ईपा की जानिब से, और उन्होंने आज इसमें कुछ अहम फैसले करने हैं। आइडियाज़ ये भी डिस्कस किए जाएंगे कि जो गाड़ियाँ रावलपिंडी से इस्लामाबाद में एंटर हो रही हैं उनको टैग कर दिया जाए, उनके ऊपर वन गो का जो है वो ऑर्डर दे दिया जाए कि ये गाड़ियाँ ही सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो
सकती हैं, उसके अलावा गाड़ियाँ नहीं एंटर हो सकती। इसके अलावा जब हमारी कुछ डॉक्टर्स से कल बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इंसान तो इससे अफेक्ट हो ही रहे हैं, इसके अलावा जो पेट एनिमल्स हैं, स्पेशली जो आपके घर में आपके पालतू जानवर हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं और इनके भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो भी रेस्पिरेटरी इंसानों के साथ साथ जानवर भी जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं। अरीम, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर जमील पेशावर से, सामिया सईद लाहौर से और नवान खान बाबर मुल्तान से हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त स्मॉग की लपेट में हैं। स्मॉग के असबाब क्या हैं और क्या स्मॉग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो सकती है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद जुल्करनैन ताहिर से, जो इस वक्त माहिर माहौलियात प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर शहजाद के साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा माहिर माहौलियात क्या कहते हैं सूरत हाल में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्मोक का मसला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ ममालिक को स्मोक की शिद्दत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर तनवीर शहजाद मौजूद है। मजीद उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या समझते हैं। दरअसल हमने ये देखना है कि हमारा अपना घर किस हद तक ख़राबी का शिकार है। तो अगले दिन ये पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट पोल्यूशन के मुतल्लिक आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, जिसमें जो 84% पोर्शन जो स्मोक का जो पोल्यूशन का है हमारी हवा में पंजाब की हवा में वो ट्रैफिक से आता है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी वाली जो बात है, मेरा तो यही मशवरा है कि जी हमें अपने घर को ठीक करना है, हमें अपने मसाइल को देखना है, जो है वो हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि दोनों ममालिक को ब्लेम गेम करने की बजाय अपने ताईं जो है वो स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात करने चाहिए, ना कि ब्लेम गेम के ज़रिए ये मलबा जो है वो एक दूसरे पर डालने की कोशिश करें। जी। शहर में स्मोक का राज बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा और बदतरीन, लाहौरियों की जिंदगियां खतरे में है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अगर लाहौर का AQI बदस्तूर इतना ही रहा तो औसतन उम्र कम होने के साथ साथ अमवात का भी खतरा है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। शहर में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा और बदतरीन होने से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि लाहौर का AQI बदस्तूर इतना रहा तो औसत उम्र कम होने के साथ साथ अमवात का भी खतरा है, क्योंकि मोहलक पार्टिकल्स और गैसेस फ़ज़ा में मौजूद हैं। माहौल में इस तरह की ख़तरनाक जो है पार्टिकल्स या इस तरह अनासर शामिल होंगे जो आप इनहेल कर रहे हैं या बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो इससे रिपीटेड इन्फेक्शन होंगी और आपके फेफड़े, सांस की जो नालियां हैं, आपका हार्ट है जो एक वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो वो जब इफ़ेक्ट होंगे तो ज़िंदगी पे असर पड़ता है और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आज़म का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा में जहरीले मादे, केमिकल्स व पार्टिकल्स होने से ज़िंदगी की औसत शरह 7 से 8 बरस कम हो सकती है। ज़िंदगी बड़ी प्यारी कीमती चीज़ है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसकी वेरी सिंपल कि आप आंखों पे ऐनक डालें, मास्क पहने, अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हालिया मौसम में नमूनिया, चेस्ट, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। कैंसर, सांस में दुश्वारी, जल्दी अमराज, आंखों में जलन, फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों में भी 3 गुना इजाफा हुआ है। शहरियों को चाहिए कि मास्क और ऐनक के इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाएं। कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने और बिला जरूरत घरों से बाहर न निकल कर ही इस खतरनाक मौसम से बचा जा सकता है।